Hello everyone. Today I'll discuss about the word cruelty. The main question which arises is here in that explain the term word cruelty as a ground of divorce. अब ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का आता है. हमने ऑलरेडी मैरिज एक्ट 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट जो है जिसमें हमने सेक्शन 13 के अंदर हमने क्रुएलिटी के बारे में पढ़ा था कि क्रुएलिटी क्यों एक मेन फैक्टर के रूप में उभर के आती है. यहाँ पे हम अभी आपको फोकस करके ये बताएंगे कि क्रुएलिटी जो है वो क्या होती है. क्रुएलिटी विच इज़ अ ग्राउंड फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज may be defined as willful and unjustifiable conduct जो कि which causes the danger to life, limb or health. It can be bodily or it can be mental. Russell versus Russell, he has described the word cruelty is a behavior or conduct which may put life and body under physical or mental form of danger, or it may arise apprehension of such danger. दोनों तरीके से है. या तो उसका बिहेवियर या कंडक्ट है जो कि उसको एक बताता है कि ये क्रूअल बिहेवियर है फिजिकली या मेंटली, या दूसरा उसे कोई अप्रीहेंशन हो जाती है कि ये कुछ डेंजर है. इसमें जया चंद्रा वर्सेस अनिल कौर है. इट हैज़ बीन यूज्ड इन रिलेशन टू द ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन बिहेवियर टू कंस्टिट्यूट क्रुएलिटी. The conduct that is complained against should be grave and weighty for arriving at the conclusion that the petitioner is reasonably expected to that he cannot live with his spouse. It means that cruelty का जो उनका जो बिहेवियर है आपस में वो इतना क्रूअल हो जो कि ये एक फोर्सिबली बताया जा सके, रीजनेबली एक्सपेक्टेड किया जा सके कि दे कैन नॉट लिव टुगेदर. अगर हम इवोल्यूशन और हिस्ट्री ऑफ क्रुएलिटी में जाते हैं तो पहले हिंदू मैरिज एक्ट में इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज द मेन फोकस पॉइंट और इसको ये कहा गया कि दिस इज ओनली फॉर वैलिड इफ अ जुडिशियल सेपरेशन इज वांटेड वी कैन हैव इट. बट बाद में इसको अमेंड जब हुआ ये हिंदू मैरिज एक्ट और मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो हुआ उसमें इसको एज अ मेन ग्राउंड भी लिया गया फॉर द जुडिशियल सेपरेशन एंड ऑल्सो विद द डाइवोर्स. ये इसका मेन कॉज ये था जब नारायणा गणेश दस्ताने वर्सेस सुचिता नारायण दस्ताने का जो केस है 1975 का जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद इसको अमेंड किया गया और इसमें जो क्रुएलिटी थी उसको एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स वाज आल्सो एडेड इनटू द एक्ट. द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट द कोर्ट should decide the case on grounds of cruelty only based upon the subject matter of the case. After the amendment of this act, there was not much distinction between grounds of cruelty and resulting to the judicial separation and grounds of cruelty resulting in divorce accepted for two words that they are added are persistently or repeatedly. मतलब पहले क्या था कि अगर cruelty है तो उसको ये ऐड नहीं किया गया कि ये परसिस्टेंस कितना परसिस्टेंस है, कितना लगातार होता है और कितना उसको बार बार किया जाता है. जब ये बार बार हो रहा है कोई एक्ट तो उसको क्रूअल माना गया है. When one party behaves with cruelty to the other party, then the other party can present an application for divorce against the first party on the ground of cruelty. That means कि earlier it was only for the judicial separation, but after the amendment it was taken into consideration and which is included in the section 10 subclause 1 of the Hindu Marriage Act 1955. By adding this subclause 1A and section 13(1) cruelty became the ground of divorce also. Other provisions under the law of this is that section 498 का A of IPC deals with the offense of cruelty against a wife by her husband and or in-laws. मतलब husband भी और उसके पेरेंट्स भी. तो इसको 498 की A की IPC के अंदर इसको इंक्लूड किया गया. Ingredients of section 498A, the woman must be legally married to her husband. दूसरा, the woman must have subjected to some sort of cruelty
or marital abuse. And third, such cruelty must be done by her husband himself or the relatives to the husband. And here the term relative only includes husband ke parents, brothers and sister, and nobody other than them, not even any close friend or any distant relatives. इन और फोर्थ पॉइंट जो इसमें इंक्लूड किया गया इन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 498 that if the husband commits such cruelty he shall be liable for the imprisonment which may extend for 3 years with a suitable fine. Explanation to section 498 under the IPC, the word expression cruelty has been defined in wider perspectives under this section. इसको थोड़ा और elaborate करके बताया गया. The commencement of any willful conduct of such a nature which would likely drive the wife to commit suicide या to cause a grave injury or a danger both mental and physically to the life of the wife. तो इसको एक इंक्लूड किया गया कि उसका जो कंडक्ट है वो इतना फोर्सफुल है हस्बैंड का कि वो या तो कमिट सुसाइड करना चाह रही है या उसको कोई ग्रेव इंजरी हो गई है या डेंजर हो गया है फिजिकली और मेंटली बोथ. तो इसको इंक्लूड किया गया. इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके वर्ड क्रुएलिटी को डिस्क्राइब किया गया. दूसरा, हैरेसिंग द वाइफ वेयर सच हैरेसमेंट इज डन विद द व्यू ऑफ her relations to meet any unlawful demands. कोई अनलॉफुल डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए अगर क्रुएलिटी को इंक्रीज किया गया, कोरेस किया गया फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इज डन इन द रिजल्ट ऑफ हर और एनी ऑफ हर रिलेशंस फेलियर इन मीटिंग सच डिमांड. तो इसको भी क्रुएलिटी में इंक्लूड किया गया कि अगर वो कुछ उससे ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो उसको इंक्लूड किया गया. अब इसमें काइंड्स ऑफ क्रुएलिटी का अगर हम डिस्कस करें तो अभी हम बार बार बोल रहे थे वी आर एम्फसाइजिंग द पॉइंट दैट फिजिकल क्रुएलिटी एंड मेंटल क्रुएलिटी. सो दो टाइप की क्रुएलिटी हैं. फिजिकल क्रुएलिटी क्या होती है? व्हेन वन स्पाउस डज एन एक्ट ऑफ वायलेंस ऑफ सच काइंड विच कॉजेज इंजरी टू द बॉडी, लिम्ब, हेल्थ टू द अदर स्पाउस, देन इट इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल क्रुएलिटी. इसमें स्वाति वर्सेस अरविंद मुदगल का केस है जो कि जिसमें हेल्ड किया गया कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल क्रुएलिटी 1 or 2 acts are more than sufficient even if the single act may be so grave and weighty that it could satisfy the test of cruelty amounts to physical cruelty. अगर एक या दो एक्ट भी ऐसे हुए हैं जिससे कि फिजिकली हार्म हुआ हो तो उसे क्रुएलिटी के प्रभाव में लाया जाएगा. मेंटल क्रुएलिटी क्या है? दिस टाइप ऑफ क्रुएलिटी इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल क्रुएलिटी, इसके वर्ड को कहीं भी फोकसली प्रेफरेबली नहीं बताया गया. इट इज़ ऑलवेज लेफ्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट की कोर्ट को अगर वो सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो कि उनको ये एम्फसाइज करते हैं कि नहीं ये क्रुएलिटी है तो उसको इंक्लूड उसको मेंटल क्रुएलिटी में फोकस कर दिया जाएगा. सोशल वैल्यूज, कम्युनिटी, कल्चर, स्टेटस, थिंकिंग प्रोसेस एंड सराउंडिंग्स ऑफ द पार्टी ऑफ टू द केस. उसी कैसे सोशल वैल्यूज हैं अगर उन सबको मद्देनजर रखते हुए एक जज जो है वो ये डिस्क्रिप्शन देंगे कोर्ट में कि ये मेंटल क्रुएलिटी की प्रीव्यू में आता है. क्रुएलिटी जो है इन द आईज ऑफ द कोर्ट, द कंसेप्ट ऑफ लीगल क्रुएलिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग मोड ऑफ द सोसाइटी. पहले जो हमारी जैसे जिस तरीके से हमारी पहले की सोसाइटी थी तो उसमें कई चीज़ें होती थी जिन्हें नलीफाई कर दिया जाता कि नहीं ये तो क्रुएलिटी में इंक्लूड नहीं हो सकती है. बट with the passage of time few things has been increased and decreased which focuses on the point at how far this act can be considered as the cruelty. What amounts to cruelty? There are no definite parameters available according to which we can say that yes, this is the parameter, this is 100% cruel, this is 50%. No, this is not as such, and it always depends upon the facts. क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं एक केस टू केस की, एंड देन इट कैन बी फोकस दैट दिस अमाउंट्स टू बी अ क्रुएलिटी.
there is a certain conduct that is generally seen as a cruelty. अब अगर unsoundness of mind है, if any party to the marriage is suffering from incurable mental disease, and उसको and if this fact gives rise to a reasonable apprehension in the mind of the other party, then it will be injurious and harmful to live with that party. तो उसको एक cruelty में कंसिडर करा जाएगा. जैसे एक केस है श्रीमती उमावांती वर्सेस अर्जुन देव का, तो इसमें इट वॉज हेल्ड दैट ऑल्दो द वाइफ इज नॉट एन इन एनी अनसाउंड माइंड बट हर पिक्यूलियर काइंड ऑफ अ बिहेवियर टुवर्ड्स हिम इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल क्रुएलिटी. अगर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में अगर आ जाए तो इट हैज़ बिन कंसिडर्ड सेवरल अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड और इवन थ्रेट of it is sufficient to cause considerable mental pressure on the other party. एक केस है हरभजन सिंह मोंगा वर्सेस अमरजीत कौर मध्य प्रदेश का. कोर्ट ने इसको हेल्ड किया गया कि थ्रेट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड बाय वन स्पाउस कॉन्स्टिट्यूट क्रुएलिटी टू अदर्स, दैट इज अ वैलिड लीगल ग्राउंड टू सीक डाइवोर्स. कि अगर बार बार वो थ्रेट दे रही है तो इट ऑल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ अ क्रुएलिटी. मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस, making false allegation about the character of the other party proves to be personal ground of seeking a divorce. एक केस है इसमें जय दयाल वर्सेस शकुंतला देवी. द कोर्ट वाज सेड दैट मेकिंग अ फॉल्स एलिगेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर अगेंस्ट हस्बैंड अमाउंट्स टू मेंटल क्रूरटी फॉर द हस्बैंड. And now there is a refusal to have sexual intercourse, that has also come under the word of cruelty. इसमें एक केस है अनिल भारद्वाज वर्सेस निर्मलेश भारद्वाज का. द कोर्ट डिसाइडेड इफ any party of the marriage having a healthy physical condition refuses to have sexual intercourse without any reason, and especially when the parties are young and newly married, it would amount to word of cruelty. If we study the history of Hindu Marriage Act 1955, we had said that एक कोई पहले था कि सिर्फ इसको जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स में लिया जाएगा, बट आफ्टर द अमेंडमेंट जो कि हुआ उसमें हमें बताया गया कि नहीं, ये इट शुड बी इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ डाइवोर्स एज वेल. इसमें नारायण गणेश वर्सेस दस्ताने वर्सेस सुचिता नारायण दस्ताने का जो 1975 का केस है उसमें इसको इंक्लूड किया गया. सो इन द होल अब हमें ये समझ आ गया कि फिजिकल क्रुएलिटी और मेंटल क्रुएलिटी दो प्रकार की क्रुएलिटीज़ हैं और कौन कौन से केस लॉज हैं. इसमें बेसिकली अगर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे और हम इसमें केसेस के साथ उसको डिफाइन करेंगे तो वी कैन सब्जेक्ट टू हैव मोर मार्क्स देन द पर्सन हु इज़ नॉट गिविंग द रेफरेंस टू द cases. So basically the conclusion if we draw out for this cruelty, it is that if any party to a marriage behaves with cruelty to other party, then the other party can present an application for divorce against the first party on the ground. Thus concept of cruelty is subjective. Subjective means ये depend करता है time, place, person, facts, circumstances एक केस के ऊपर. ये 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो जो एक्ट है पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्ट वो क्रुएलिटी के कंसिडरेशन में आएगा कि नहीं आएगा. सो डैट वी कैन कंसिडर क्रुएलिटी टुडे वाज नॉट अ कंसिडर्ड क्रुएलिटी इन अ फ्यू इयर्स. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पहले पास्ट में कई एक्ट जो ऐसे थे जिसको कि क्रुएलिटी के दायरे में नहीं लाया गया, परंतु एज द स्टेजेस पास एंड नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन देयर आर फ्यू थिंग्स which have been included in the world of cruelty and the few things which has been discarded कि अब ये पहले इसको क्रूअल मानते थे और अब इसको क्रूअल नहीं मान सकते हैं इस एक्ट को. सो I hope you are able to understand that what is that why the ground one of the grounds of cruelty and को क्यों इनको इसको इंक्लूड किया गया फॉर द सेपरेशन फॉर द डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन. I hope you are able to understand the full-fledged concept of cruelty in that being a part of the ground of divorce. If you liked my video, please do comment and share and press the like button so that it motivates me for making the new videos.
Thank you very much. See you in the next video, which I will have for desertions, because the marks compiling for this question is the ground of divorce. Both desertion and cruelty comes in one, but being the video can be a more bit longer, that's why I put cruelty and focus the cruelty in one only video. Thank you very much. See you in next video with desertion. Bye bye.